Hello everyone, I am Swati Khanna, coordinator for Value Addition courses. Today, in this series of videos, we shall be discussing value addition courses that a student has to study during graduation. The purpose of value added course is to ensure holistic development of a student to make students more creative, ethical, and above all, a good human being. Under the National Education Policy, every student has to study one value added course in first semester, second semester, third semester, and fourth semester, respectively. Every semester, the college shall provide a pool of options from which every student can choose to study one VAC subject in that semester. A student has to choose different VAC subject in every semester. For example, if student goes in for opting art of being happy in semester 1, they cannot choose this subject in semester 2, 3 or 4. Every VAC subject shall be of 2 credits or 80 marks. The subject could be either totally practical in nature or shall involve a combination of lecture and practical. Now, I invite faculties from different departments to share the details of VAC subjects they shall be offering to the students. We first have Dr. Dinesh Kumar Singh from History Department to share his subject details. Thank you. Okay, good morning to all of you. Dear students, uh, Department of History, Bharati College, University of Delhi, welcomes to all of you. Uh, first, in the first part, I would like to believe on you and believe your brilliancy, talent, and you are going to hear me. You are going to listen to me. Ethics and culture. Uh, this paper is a value-added course assigned for third semester, and uh, for each discipline, if you choose it, you will get 2 credits, and with theory and practical. Department of History uh, also uh, ready to help you when you are getting confusion, when you are getting difficulties, and in this paper, you can know how to know to each other, and how and what expect to each other, and you can understand what is humanity, empathy, compassion, and so many things. And for example, in Sanskrit, it is called very sweet words. येषां न विद्या तपो न दानं ज्ञानं न शीलं गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूतः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति. Then in this part again we will try to teach you what is right to do and how to resolve the issues and how to control the emotion, how to make balance the emotion, and kindness, mindfulness are also necessary for your life, not only to yourself, towards other also, and meditation can help you. I will tell you the salient features of meditation, type of meditation. For example, vipassana and chit vritti nirodha, as Patanjali said. And you can understand also self-discipline, self-commitment, honesty, creativity, and so many things you can understand in this part. हम सबके प्यारे विद्यार्थियों, आप इसमें वो सब कुछ समझेंगे जो
आप घर में, परिवार में, धार्मिक स्थलों पर समझते हैं, वो सारी बातें हम सब मिल करके बात करेंगे, समझेंगे, एक दूसरे पर भरोसा करना सीखेंगे, एक दूसरे की बातों को तर्क द्वारा भी समझना चाहेंगे, और कहीं भी हम किसी किसी की मदद अगर कर सकते हैं, इसके लिए हम सोचेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द कॉलेज and have a nice your future. Thank you very much. Thank you so much, sir. Now we have Dr. Madhuri Sharma, who shall be talking about culture and communication. Hello, students. The way our back convener, Dr. Swati Khanna, and our history department TIC, Dr. Dinesh Kumar, told you that why this course is important. Because this adds value to our life. ये हमें हमारे जीवन में मूल्य प्रदान करता है, और जब हम मूल्यों से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे कर्म, हमारे वचन, हमारे धर्म में मूल्यों को प्रदान करता है। इसी की रूपरेखा में इतिहास विभाग एक और वैक का कोर्स ऑफर करता है जिसका नाम है कल्चर एंड कम्युनिकेशन, दैट इज संस्कृति और संचार। अब संचार या कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं? यानी हम किसी भी हाव भाव या भाषा के द्वारा एक दूसरे के साथ अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं या अपने आवाज को उन तक पहुंचाते हैं जिससे कि वो समझ सके। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कल्चर एंड कम्युनिकेशन की, तब हम यहाँ पर अपने भारतीय संस्कृति की बात कर रहे हैं। तो हम भारतीय संस्कृति में किन भाषाओं के द्वारा, किन माध्यम के द्वारा हम एक दूसरे के साथ संवाद करते थे और कैसे और लोगों के बीच अपनी उन बातों को, अपनी मूल्यों को जो है आदान प्रदान करते थे। सो द वेरी मच ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पेपर इज, that is culture and communication, is that focus would be on traditional values. और ये ट्रेडिशनल वैल्यूज हमें हमारे इंडियन कल्चरल हेरिटेज के द्वारा कैसे हमें पारित होते हैं, जैसे हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, बड़ों का चरण स्पर्श करते हैं, या हम कैसे अपने बड़ों को एक आदर के समान दिखते हैं, अपने गुरुओं को देखते हैं, अपने भाई बंधुओं के साथ कैसे मिलकर रहते हैं, किन गुणों के साथ रहते हैं। और इसी के साथ this paper helps us to understand the interconnection between the legacy of our past and why it is important in our contemporary society also. And this helps us to adapt, interact, and celebrate our diversity and pluralistic culture. Underline this point, that this particular thing help us to adapt, interact, and celebrate our diversity and pluralistic culture, through which we'll develop communication skills in speaking, listening, reading, writing, and then we'll apply them in our day-to-day life. And while applying in our day-to-day life, we'll integrate our ethical values with our लाइफ स्किल्स। तो यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि कैसे हम संस्कृति के द्वारा इन सारे मूल्यों को सीखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, जिससे कि कहीं ना कहीं समाज में जो आज बहुत सारी परेशानियां उभर के आ रही हैं कि कोई कहता है मैं डिप्रेशन में आ रहा हूँ, कोई कहता है मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, या हम कहीं ना कहीं अपना ईगो लेके आते हैं, हम किसी एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करने लगते हैं। एज वी ऑल नो कि हम सब अपने आप में यूनिक है, तो यूनिक होते हुए भी हम कैसे एक साथ सौहार्दपूर्ण रह सकते हैं। तो हियर you students will be able to appreciate the relevance of ancient Indian wisdom and core ethical values in our contemporary life. और इसको हम किस किस माध्यम से करेंगे, जैसे आप कह सकते हैं, आपने कुछ शब्दों को सुना ही होगा, जैसे वसुदेव कुटुंबकम, कि पूरा विश्व एक कुटुंब की तरह है, लेकिन क्या उस विश्व में, उस कुटुंब में विविधताएं नहीं है? विविधताएं होने के साथ साथ हम एक दूसरे को स्पेस देते हुए और साथ में लेते हुए चल रहे हैं। तो इस तरीके से वसुधैव कुटुंबकम का क्या रेलिवेंस है और क्यों जरूरी है हमें आज के संदर्भ में उसको अपनाना,
इसी तरीके से वाइल डेवलपिंग लाइफ स्किल हम एम्पैथी की बात करेंगे, हम अडेप्टेबिलिटी की बात करेंगे, हम हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसको कैसे कंजर्व करें, हम अपने नॉलेज रिसोर्सेस को कैसे एक दूसरे के साथ करें, और इसी के साथ साथ हम तर्क और वितर्क भी सीखेंगे। हम ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जो सुन ले हम उसको याद कर ले और उसी को लिख दें, या जो हम सुने उसी को क्या कहते हैं सत्य मान ले। नहीं, हमें इसके साथ साथ एनालिटिकल रीडिंग, राइटिंग, क्वेश्चनिंग भी हम साथ के साथ सीखेंगे, और ये आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से, जैसा कि वैक कोर्सेज का क्रेडिट 2 क्रेडिट होता है, इस माध्यम से सिखाया जाएगा। तो अंततः हम यही उम्मीद करते हैं कि आप कोई भी वैल्यू एडेड कोर्स करते हो तो उससे एक मूल्यवान नागरिक के रूप में उभर कर आओ और देश के लिए और विश्व के लिए एक अच्छा उदाहरण साबित हो। So looking forward for your great future. Thank you. Thank you. Thank you, Madhuri ma'am. Now we have Dr. Shakti Modak, who shall be talking about ethics and values in ancient Indian traditions. Shakti ma'am, we are looking forward. Am I visible to you? Do you hear me? We can hear you, ma'am, though Yes. the video is a bit blurred. Yeah. But video is not coming. Okay, It's fine now, ma'am. Yeah. it's fine. Okay. Greetings to all my students. Welcome to Bharati College. And this paper, Ethics and Values in Ancient Indian Traditions, is being offered to semester 1 this year, though semester 3 students have also studied this. Semester 2 students have also studied this in the past. Now, Ethics and Values, it's a paper with 2 credits that requires 1 lecture and 1 practical, which is 2 hourly, right? Now, the important thing about this paper is that, as the title goes, ethics and values. Ethics actually mean some kind of naitikta, ठीक है ना? And values means some kind of value-based, संस्कार जिसको कहते हैं हिंदी में. तो नैतिकता और संस्कार जो हमें अपने माता पिता से मिलते हैं, जो हमें अपने परिवेश से, अपने पृष्ठभूमि से मिलते हैं, उनके वास्तव में आधार हमें प्राचीन भारतीय परंपरा में कहाँ और किस प्रकार से मिलता है. एक तो हमें ये पढ़ना है, नंबर 1. So we have to understand the roots of all this in our cultural tradition. That's part 1. Second, we have to examine and analyze that what is the gravity of these ethics and values that they are persisting and they are sustaining our society since thousands of years. Right? उनमें ऐसे क्या गुण हैं, क्या महत्ता है उनके जो आज तक चले आ रहे हैं. And number 3, that how we can enrich our lives by pursuing those very ethics and values that have been taught to us or that have been carried out through tradition to us since generations after generations, so that we can make our lives better. Now the question is that when we are talking about our cultural traditions is very wide, very vivid, very vibrant. We have the highest form of philosophy, and we have the highest form of art and architecture, and we have the highest form of music, and we have the best of the literature, right? One of our sources for this is the Vedic studies. We have the Vedangas, we have the Upanishads, right? We have the shamanic traditions of both Buddhism, Jainism, and other traditions that we can have. And we also have many other, epics. Epics are very important, but we are not talking about all the epics. We only discuss the early epics, that is Ramayana and Mahabharata. Ramayana, as you know, is a narrative and a history both of the life of Ram. Now, the point to be noted is that in Indian tradition, it is not the king who matters. It is the moral values that a king or man stands for, which is important. Look, if it were history of England, they would have been writing about the king, what the king did. Here, Ramayana is a story of Ram who wanted to be a king, who was supposed to be the king, but he has been sent Vanvas. Now it contains the story of, suppose
Ramayana is not just the story of Ram, it is also the story of Bharat and all his brothers. But it is not focusing on Bharat who became the king. It is entirely focusing on Ram even when he was in Vanavas. It means that it is not the position, not the situation that a person is in, but the moral values, the ethics that he carries with him, which are important and which the society remembers. And it is through which the society tries to immortalize that person and remember him through ages. So this is what we have done with Ram, because he stood for certain values, Maryada Purushottam. Right. Then we come to Mahabharat. Mahabharat is all kinds of genres of literature, you may say. It has discourse, political discourse, it has economic discourse, it has philosophical discourse, it has kimbadantis, it has akhyanas, it has all kind of genres of literature that you can have. Right. It also has romance, Nala Damayanti. So this is all in Mahabharata. Mahabharata is very important because it portrays you characters like Bhishma Pitama, characters like Gandhari, characters like Karna, besides Sri Krishna, who gave Bhagavad Gita to us. So this is all that we teach here in ethics and culture. And in 2 hours practical, we discuss these very personalities. We discuss their characters. We discuss what we learn from them, right? And then I give you some kind of assignment and project to work on, where you are required to make PPTs. And students have been making beautiful PPTs, and some of the PPTs have been represented outside also, where they have made PPTs out of Panchatantra, Hitopadesh, out of Bhagavad Gita, naturally, and so many from Ramayana. So it's very, very interesting, and it doesn't require any external examiner to examine you for your practicals, as in science-based WAC. What you do, what you teach, what you discuss in the class, that goes as your continuous assessment, that goes as your practical marks, and this is how you are able to score well, and this is how you are able to learn 2 essential things. Number 1, you are able to strengthen your mental abilities, because through communications and discussions, you evaluate and analyze personalities of the past, and you try to see those personalities around you, and you try to become a better judge of human beings. That's one thing which is very important. Second thing is, now that you are competing not with your friends who are equally educated, who have equal command over English language, who have equal what you call articulation skills, spoken and written, you are competing with the world. You are competing with all capable people of your age in the world, because it's a globalized world, right? Particularly with Asians, because many of you will compete when they take up their jobs. They will compete with the Japanese, they will compete with the Koreans, they will compete with the Taiwanese, they will compete with the Vietnamese. This is Excuse me, going to ma'am. happen. It's going to be the scene in India, right? So it makes you all the more stronger, because when you compare yourself with all these international competitors, you find that when you have imbibed Indian values, it Shakti, makes you ma'am. outstanding, right? So this is Thank very you. important, and this is the value of this course. Thanks a ton, Madam Swati Khanna, for giving me the opportunity to speak to my students. Okay. Thank Goodbye, you so beta. much. Thank Bye-bye. you. Now I invite Professor Manju Sharma to share her thoughts on Sahitya, Sanskriti or cinema. धन्यवाद स्वाति। सबसे पहले मैं अपने बच्चों का स्वागत इन 2 पंक्तियों से करूंगी। भारती के पावन प्रांगण में स्वागत नव आगंतुक का मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम में हिंदी विभाग के निर्देशन में आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम के विषय में। मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम, जैसा कि जो लोग बता चुके हैं पहले से, मैं उसको रिपीट ना करते हुए आगे की अपनी बात कहूंगी। जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि मूल्य संवर्धन माने बढ़ाने वाला, मूल्य यानी जो नैतिकता, जो काफी बताया जा चुका है। इसमें कितने पीरियड्स होंगे, कितना क्या होगा, ये सब चीजें बताई जा चुकी हैं, इसलिए उसको रिपीट नहीं करेंगे।
हम अपने विषय पर आएंगे जो हमारा शीर्षक है साहित्य, संस्कृति और सिनेमा। वस्तुतः साहित्य के बारे में हम लोग बहुत प्राचीन समय से सुनते आए हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। दर्पण माने कि समाज में जो कुछ घटित होता है, जो कुछ समाज में गतिविधियां होती हैं, उनका प्रभाव साहित्य पर पड़ता है। आज की स्थिति में यदि हम संस्कृति की बात करें तो संस्कृति का मतलब हमारे जितने आचार विचार हैं, वेशभूषा है, खान पान है, रहन सहन है, इन सब आदि चीजों का सम्मिलित स्वरूप ही हमें संस्कृति के अंतर्गत देखने को मिलता है। सिनेमा की बात करें तो सिनेमा आज की स्थिति में, आज के समय में मात्र मनोरंजन तक सीमित नहीं है, वरन समाज को गहराई तक प्रभावित करता है, और न केवल वह प्रभावित करता है वरन स्वयं भी प्रभावित होता है। तो अतः हमारे जो विषय है या हमारा जो शीर्षक है साहित्य, संस्कृति और सिनेमा, यानी इन तीनों के माध्यम से हमारे हमारे को करना है छात्रों के अंदर नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, संवैधानिक आदि मूल्यों को विकास करने की चेष्टा करना। इन सब के साथ में ही हमें भारतीय ज्ञान परंपरा एवं नैतिक मूल्यों के प्रति बच्चों में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करने की आवश्यकता है। इसीलिए इस विषय को लिया गया है। और चूंकि आज के समय में फिल्मों से युवा पीढ़ी अधिक प्रभावित होती है, इसलिए सिनेमा को इस विषय में प्रमुख रूप से स्थान दिया गया है और पाठ्यक्रम में सिनेमा के आधार पर साहित्य को और संस्कृति को ढूंढने की या उनसे जुड़ने की कोशिश की गई है, जिसके माध्यम से बच्चों में वैचारिक समझ और तार्किक क्षमता विकसित हो सके। और इनके अंतर्गत हम इस विषय में जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम इन तीनों की परिभाषाएं यानी साहित्य, संस्कृति और सिनेमा की क्या परिभाषाएं है, क्या उसका स्वरूप है और क्या इनका आपस में अंतः संबंध है, इन सब का अध्ययन हम विस्तार से करेंगे। सिनेमाओं में हम कुल मिलाकर के 9 फिल्में हैं जिन्हें हमें देखना है, और शायद इससे ज्यादा रोचक कोई विषय नहीं हो सकता कि हमें फिल्में दिखाई भी जा रही हैं और फिल्मों के दिखाने के साथ साथ ही हमें पढ़ाया भी जा रहा है, हमारे अंदर नैतिक मूल्यों का विकास भी किया जा रहा है। साहित्य कृतियों पर आधारित सिनेमा में हमारे पास कुछ फिल्में हैं, जैसे आनंद मठ जो 1952 में आई थी, तीसरी कसम, रजनीगंधा, पद्मावत आदि आदि। और उसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित जो फिल्में हैं जो हमें देखनी है, नाम आप लोगों ने सुने होंगे, मदर इंडिया, बंदिनी, पूरब और पश्चिम, हम आपके हैं कौन और टॉयलेट एक प्रेम कथा। इस तरीके से हमें 9 फिल्में हैं ये, जो सन 1952 से शुरू होती हैं, 52 से लेकर के और 2017 तक की फिल्मों को इसमें समाहित किया गया है। और हम जब पढ़ेंगे या इनकी हम जब तार्किक समीक्षा करेंगे तो उस समय हम देखेंगे कि कैसे समाज को प्रभावित इन्होंने किया, और पुरानी फिल्में जिन्हें हम लोग आज भी सराहते हैं तो उनमें और जो वर्तमान फिल्में हैं उनमें क्या अंतर आ रहा है, क्या चीजें हैं जो कि उसमें विकसित की गई हैं, या कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, जो कौन से ऐसे सांस्कृतिक सामाजिक मूल्य हैं जिनको कि हमें आज जो छूट गए हैं उन्हें अपनाने की जरूरत है। इस तरीके से हमारा ये साहित्य, संस्कृति और सिनेमा ये संक्षिप्त सा सिलेबस है, संक्षिप्त सा आपका पाठ्यक्रम है जिसे हमें पढ़ना है, और बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही रोचक तरीके से ये पूरा पाठ्यक्रम आपके समक्ष रहेगा। अंत में मैं बस 2 ही लाइनें कहूंगी। मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम का साहित्य, संस्कृति और सिनेमा परिभाषा स्वरूप समझकर नैतिकता को विकसित करना, यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारे इस पाठ्यक्रम का मूल धर्म है। धन्यवाद। Thank you, Manju ma'am. I now call upon Dr. Anupriya to discuss सृजनात्मक लेखन के आयाम. नमस्कार सभी को। जैसा कि सब बोल ही चुके हैं कि यह मूल्य संवर्धन पाठ्यक्रम के अंतर्गत आता है, तो सृजनात्मक लेखन के आयाम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह पेपर जो है विद्यार्थियों के लेखन कौशल को विकसित माध्यम है। जो विद्यार्थी लेखन में रुचि रखते हैं उनके लिए जो है यह विषय बहुत ही लाभकारी है, यानी कि एक मार्गदर्शक के रूप में भी है, क्योंकि इस विषय के अंतर्गत विद्यार्थी जो है अपने लेखन कौशल को बेहतर ढंग से विकसित कर पाते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है सृजनात्मक लेखन के आयाम, तो सृजनात्मकता का अर्थ दरअसल विद्यार्थियों की आत्म अभिव्यक्ति का भी कारण बनता है।
तो आत्म अभिव्यक्ति किस तरीके से सृजनात्मकता का रूप लेती है और क्या क्या आयाम उसमें जुड़ते हैं। जैसे कि अगर हम मान लें कि निबंध लिखना हो, कहानी लिखना हो, कविता लिखना हो, तो कैसे इन विभिन्न विभिन्न आयामों में व्यक्ति नए ढंग से उसको और समृद्ध करने के लिए क्या क्या नई तकनीकी का इस्तेमाल करता है, कैसे भाषा और विचार एक साथ मिलकर कैसे जो है भाषा को समृद्ध बनाते हैं, उसकी जो रचनात्मक क्षमता है किसी भी विद्यार्थी की, उसको कैसे नए स्वरूप में विकसित करते हैं। इस विषय का उद्देश्य दरअसल यही है कि रचनात्मक ढंग से, सृजनात्मक ढंग से जो है अपने लेखन कौशल का विकसित करना। इस विषय के अंतर्गत जो है हम सृजनात्मकता क्या है उस पे हम गहराई से अध्ययन करेंगे, उसका स्वरूप क्या है, उसका बोध क्या है, और सृजनात्मकता किस तरीके से परिवेश से जुड़ती है, परिवेश से जुड़ते हुए कैसे एक व्यक्ति या कैसे एक विद्यार्थी अपने लेखन को समृद्ध बनाता है, क्या समाज से कैसे उसको जोड़ता है, अपने परिवेश से कैसे उसको जोड़ता है। इस पे भी हम इस विषय के अंतर्गत गहन अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ हम सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत जो भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है, जो शब्द संयोजन का जो स्थान है, जो भाषिक त्रुटि मतलब जो भाषिक संदर्भ होते हैं, वो किस तरीके से आपकी रचना कौशल को समृद्ध बनाते हैं, किस तरीके से उसको एक नया मोड़ दे देते हैं, इसका भी अध्ययन हम जो है इस सृजनात्मक लेखन के आयाम विषय के अंतर्गत पढ़ेंगे। भाषा की जो विभिन्न छवियां हैं जो कि हमको साहित्य में देखने को मिलती हैं, कैसे भाव भाव पाकर मतलब भाव जो होते हैं आपको वो किस तरीके से भाषा में रूपांतरण होकर आपकी अपनी भाषा बन जाती, इस पर भी विचार जो है इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम देखेंगे। और सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत जो उसके विविध आयाम हैं, जैसे कि व्यंग्य लेखन हुआ या हास्य लेखन हुआ, तो जब हम प्रिया मैम, और हास्य लेखन अनुप्रिया मैम, हमारे पास सिर्फ 9 मिनट्स हैं, आप प्लीज जल्दी वाइंड अप करिए, अभी 2 फैकल्टीज को और बोलना है। प्लीज आप 1 मिनट लास्ट से वाइंड अप कर दीजिए। बस लास्ट ही है मैम, बस लास्ट ही है ये। तो इसके अंतर्गत तो ये जो विभिन्न विभिन्न आयाम है, हिंदी साहित्य के जो विभिन्न विभिन्न आयाम हैं, जैसे कि मैंने बताया है पहले कि जैसे कि लघु कथा हो गया, उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, निबंध, इसमें कैसे जो है व्यक्ति भाषा के माध्यम से या अपने जो वो होता है क्या बोलते हैं उसको, भाषा के माध्यम से या जो संगतियां होती हैं, कैसे भाव और विचारों के माध्यम से इसमें कैसे नए नए परिवर्तन कर सकता है, कुल मिला के कैसे अपने लेखन कौशल को रचनात्मक मोड़ दे सकता है, यह इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है। धन्यवाद। Thank you, Dr. Anupriya. Pratesh sir, please come over for Art of Being Happy. Dr. Pratesh. Till Dr. Pratesh joins in, can I request Vibha ma'am to share her orientation for NCC 1 and 3? Thank you, Swati. Thank you very much. Good morning to all and Jai Hind to all students. Myself, Dr. Vibha Maurya, NCC officer of Bharti College. It's very great thing that कि NCC जो है वो बैक में इंट्रोड्यूस हुआ है। अर्लियर हम लोग सिर्फ यूनिट से ही कॉन्टेक्ट करके एडमिशन करा करते थे, ठीक है। नाउ द थिंग इज दिस कि हमें बैक के द्वारा जो एनसीसी है उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उसको अपने सिलेबस में इंक्लूड कर दिया है। तो पहले जो कैडेट्स हुआ करते थे वो बेसिकली परेशान रहते थे कि कैसे वो कोऑप करें स्टडीज के साथ में और एनसीसी के साथ, लेकिन बैक ने उन सब चीजों को बहुत इजी बना दिया है। अब हमें बैक पढ़ना है वो भी सिलेबस के अंदर, तो इससे एनसीसी की जो संभावनाएं हैं और एनसीसी से जो बच्चे पहले कॉप अप करने में मुश्किल होती थी वो सब चीजें दूर हो गई हैं। जैसे आपको सभी को आपने सुना होगा व्हाट इज एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर। इट्स अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। बेसिकली हम आपको एक ट्रेन्ड यूथ प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। ट्रेन्ड यूथ का मतलब क्या है कि मेंटली फिट एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग। बेसिकली एनसीसी आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें आपको आपका ओवरऑल डेवलपमेंट जो है
वो पॉसिबल हो पाता है। मेंटली भी और फिजिकली भी हम आपको टफ ट्रेनिंग देते हैं ताकि आप इन एनी सिचुएशन आप अपने आप को प्रूव कर सको। बेसिकली जो एम है एनसीसी का वो यही है कि हम इस तरीके के यूथ को क्रिएट करें जो सोशल मतलब सोसाइटी को प्लस नेशन को कंट्रीब्यूट कर सके, कुछ उसके लिए विकास के लिए योगदान दे सके। अब बात ये आती है कि हम एनसीसी क्यों लेना है। एनसीसी इसलिए लेना है क्योंकि एनसीसी लेने से एक तो हम फिजिकली फिट हो जाएंगे, ठीक है, मेंटली भी फिट हो जाएंगे। दूसरा एनसीसी जब ये 3 इयर्स का कोर्स अपना पूरा कंप्लीट करते हैं और सी सर्टिफिकेट हमें मिलता है, तो उसके बाद हमें बहुत सारे ऐसे डिफेंसेस सर्विसेज हैं या और भी जगह जो है हमें रिलैक्सेशन मिलता है। तो एक तरीके से तो एनसीसी में 2 फायदे हैं, एक तो आपका डेवलपमेंट हो रहा है ओवरऑल प्लस वन थिंग, और दूसरा क्या है कि जॉब ओरिएंटेड है कि कल को फ्यूचर में आप किसी भी जॉब में जाते हो, ज्यादातर वो जॉब जिसका संबंध फिजिकल ट्रेनिंग से है जैसे पुलिस डिफेंस, तो उसमें आपको इसका बहुत फायदा मिलता है क्योंकि दे अंडरस्टूड कि अगर एक एनसीसी का कैडेट है तो पहले से ही ट्रेंड होगा। तो इससे जो है आपका ये जॉब का जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक सॉल्व होता है। अब जो प्रॉब्लम है वो ये है कि क्या एनसीसी हर कोई ले सकता है? क्या एनसीसी की बहुत सारी सीट्स है? नो, एनसीसी के लिमिटेड सीट्स हैं, वेरी फ्यू सीट्स। और आप अपनी मर्जी से एनसीसी नहीं ले सकते। एनसीसी आपको कब मिलेगी? नंबर 1 आपको एक फिजिकल टेस्ट पास करना होगा, नंबर 2 एक रिटन टेस्ट पास करना होगा, नंबर 3 इंटरव्यू क्लियर करना होगा। क्योंकि हमारे पास सीट्स बहुत कम होती हैं और गवर्नमेंट आपके ऊपर पैसा खर्च करती है। पर डे आपको जब परेड होगा, मतलब जब भी आपका फिजिकल प्रैक्टिकल होगा, आपको गवर्नमेंट 90 रुपीज की रिफ्रेशमेंट देती है। उसके अलावा जितने भी कैंप होते हैं, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे बाहर के कैंप हो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट उस कैंप में जाते हो, खाना खाते हो, रहते हो। इवन अगर आप बाहर के कैंप है तो आपका जो वहां का आने जाने का किराया, अगर कोई ट्रैकिंग कैंप है तो उसका पूरा खर्चा, कोई एडवेंचर कैंप है जैसे कि पैरास्लीदरिंग या पैरास हाँ मैम, सेलिंग, सॉरी टू इंटरप्ट, वी हैव ओनली 2 minutes, प्लीज वाइंड अप फास्ट। ओके ओके ओके। तो इस तरीके से सारे के सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो गवर्नमेंट करती है उसको, ठीक है। तो ये सारे फायदे हैं एनसीसी लेने के। अभी हमारे कॉलेज में जब ये वैक की हम बात करते हैं तो वैक जो है 3rd सेमेस्टर में वैक कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि वही लेंगे जो ऑलरेडी 1st सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर में वैक करके आए हैं, ठीक है। तो एनसीसी का वैक लेने के लिए आपको एनसीसी की यूनिट जो हमारी 5 दिल्ली गर्ल्स बटालियन है उसके साथ में एनरोल होना बहुत जरूरी है। जो कि मैंने आपको बताया कि फिजिकल ट्रेनिंग जो हम फिजिकल टेस्ट लेंगे आपके, उसके थ्रू वहां से जो आर्मी पर्सनल आते हैं वो उसका एनरोलमेंट करते हैं। तो एनसीसी जो 3rd बैच है उसमें आप नहीं ले सकते एडमिशन, उसमें वही लेंगे जिन्होंने 1st और 2nd सेम में एनसीसी लिया हुआ है। इट्स क्लियर। लेकिन जो 1st ईयर के जो कैडेट्स हैं उनके लिए मैं ये बताना चाहूंगी, लास्ट लाइन है बस मेरी, ये बताना चाहूंगी कि एनसीसी के एडमिशन तब होंगे जब भी होंगे वो एक पोस्टर बना करके वो पूरा सर्कुलेट किया जाएगा, आपको डेट बताई जाएगी कि इस डेट पे फिजिकल ट्रेनिंग है और टेस्ट है, सब कुछ सेम डे होगा। तो आपको उस दिन आना होगा। और अगर आप विलिंग हो, अगर आपको लगता है इफ यू आर प्रिपेयर कि भी आपको मेंटली टफ और फिजिकली टफ बनना है, देन ओनली यू कम, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू एवरीवन, बाय। ओके, सो प्रत्यय सर, एक्चुअली हमारे पास इसमें मीटिंग टाइम 1 मिनट ही रह गया है, तो हम नेक्स्ट मीटिंग स्लॉट में आपका सबसे पहले करा देते हैं। सो थैंक यू एवरीवन for discussing your back papers for respective subjects. So students, this was the first part of the recording of the back papers. We will be having another parts of the back recording, which will be also important for you to listen. Thank you everyone for joining the meeting.